This screen is, I suppose, visible to everybody. Are you getting my voice? Good morning, sir. Yes, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में सिस्टम कॉल के बारे में, तो उसमें उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे एक जो है पेरेंट प्रोसेस किसी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है विद द यूज ऑफ फोर्क, फिर स्लीप, गेट पीआईडी, गेट पीपीआईडी, फिर वेट सिस्टम कॉल, जिससे हम लोगों ने देखा कि वो एक सिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन concurrent processes which are running in parallel, so that we can avoid the creation of zombies, we can avoid the creation of orphans. So that also we have seen. And today we'll see fork and exec. Fork we have already seen, but so far we have not seen the use of exec. मैं आपको ये बार बार बताता रहा हूँ कि जब भी हम कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो व्हाट एक्चुअली वी डू इज डॉलर प्रॉम्प्ट पे जब हम किसी कमांड को सबमिट करते हैं, लेट अस सपोज दैट कमांड इज cmd, तो दिस डॉलर वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ शेल। तो शेल जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। So what shell is doing when we submit this command and press enter? So shell is basically creating a child process in order to execute this cmd command. And every command, you know, is the name of a program, because there must be a code associated with every command. The only difference is that since these commands are available ready-madely to us, so what we know is we can directly execute them without bothering for the actual code of that command, because that is the part of operating system. So for that matter, we have discussed the internal and external commands, and we know that there are certain commands whose codes are already embedded in the shell. So we don't need any explicit code associated with that command, because when we run that command, the code is already lying with the shell. And you know that when system is functional, all the time we keep getting this dollar sign that indicates the shell is residing in the RAM. So there is no need to bring that program from hard disk to RAM. हमें उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले से ही शेल में embedded है। तो इसलिए उन कमांड्स को हम कह देते हैं कि they are the internal commands because their codes are internal to shell and they are available till the system is functional. But there are certain commands whose codes are not embedded in the shell. They are not permanently available in the RAM. When we say that system is booted, so that means shell is lying in the RAM. So internal commands के तो सारे कोड जो है शेल का पार्ट है, तो वो रैम के अंदर रहते हैं। लेकिन जो ऐसी कमांड्स जो जिनका कोड जो है शेल के अंदर नहीं है, उनको हमें कहाँ से करना पड़ेगा, उनको हार्ड डिस्क से वो ट्रांसफर होता है उसका कोड रैम में, और तब वो कमांड चलती हैं। तो इसलिए जब हम किसी कमांड को रन करते हैं, तो एसोसिएटेड विद दैट कमांड देयर इज अ कोड। वो कोड रन होना चाहिए। यस, कोई प्रॉब्लम है बताइए। सो व्हेन वी रन दैट कमांड, व्हाट इज हैपनिंग, जब हम शेल को वो कमांड सबमिट करते हैं, तो शेल फर्स्ट टाइम क्या करता है, इट इज एग्जीक्यूटिंग अ फोर्क सिस्टम कॉल। और फोर्स सिस्टम कॉल यूज करते हुए वो एक चाइल्ड को क्रिएट कर देता है। दिस इज द चाइल्ड प्रोसेस। ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया। अब दिस चाइल्ड विल बी क्लोन ऑफ शेल, because so far we have learned that whenever any parent is forking a child, the code will become common in both the parent and child processes. So obviously जो शेल है उसी अपना एक क्लोन वो एक चाइल्ड के रूप में क्रिएट कर देगा। बट व्हाट वाज माय ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव वाज टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। इस कमांड को रन करना है। तो इसका मतलब है कि इस चाइल्ड का जो कोड होना चाहिए, वो तो कोड वो होना चाहिए जो कमांड का कोड है। तो व्हाट इज हैपनिंग इस केस में, फिर ये जो चाइल्ड प्रोसेस है, ये एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है exec, and with the use of exec it is overwriting itself with the code of cmd command. तो cmd commands के जो codes है ये अपने आप को overwrite कर लेता है। Now you can imagine कि this child has become independent of shell because it is no more having any similarity with the shell. Earlier it was a clone of shell, but with the execution of exec system call, it has overwritten itself with the code of this command which is to be executed. So now with that, this child will be executed, and the end result you will see on the screen as a outcome of this command. ये command का outcome आपको screen के ऊपर दिख जाएगा। And when this execution is over,
द शेल शुड रिज्यूम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, वी शुड लेट द शेल टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस चाइल्ड। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दिस केस कि डॉलर प्रॉम्प्ट पे जब हम कोई कमांड सबमिट करते हैं तो कमांड आप जब सबमिट करके एंटर प्रेस करते हो तो इमीडिएटली आपको डॉलर नहीं मिलता। फर्स्ट यू आर गेटिंग द रिजल्ट एंड देन यू गेट द डॉलर। इसका मतलब है कि दिस डॉलर वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ शेल। तो शेल जो है इस कमांड के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। जब वो कमांड पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तब शेल अपना नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम करता है और आपको फिर से डॉलर प्रॉम्प्ट दे देता है। दैट मीन्स नाउ इट इज वंस अगेन रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू कमांड फ्रॉम योर साइड। So it means what shell has been doing when this child is overwriting itself with the exec and proceeding with the execution. In the meantime, shell is asserting itself for a wait. And how long it has to wait? It has to wait for the completion of child. तो shell जो है वो वेट स्टेट में चला जाता है और तब तक वेट स्टेट में रहता है जब तक कि उसको ये ट्रिगर सिग्नल वापस यहाँ से ना मिल जाए कि चाइल्ड इज टर्मिनेटेड। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड टर्मिनेट होगा तो वेट का आपने यूज देखा है पहले भी, तो वो एक बार शेल को, क्योंकि इस केस में पेरेंट शेल है, तो शेल को इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये जो चाइल्ड प्रोसेस है इसका एग्जीक्यूशन ओवर हो चुका है। तो उसके बाद व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रिज्यूमिंग इट्स ऑपरेशन एंड द आउटकम ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन इज द डिस्प्ले ऑफ डॉलर प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि जब भी कोई कमांड हम डॉलर प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्या होता है, वहां पे 3 जो सिस्टम कॉल्स हैं वो अब एक्सप्लिसिटली अपना रोल प्ले करती हैं। एक फोर्क, दूसरी एग्जेक और तीसरी वेट। फोर्क और वेट ये पेरेंट के लिए है, एग्जेक जो है वो चाइल्ड के लिए है। तो फोर्क से पेरेंट क्या करता है, इट इज क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस और उसने चाइल्ड क्रिएट कर दिया। और चाइल्ड प्रोसेस ने क्या किया, इट इज मेकिंग यूज ऑफ एग्जेक। तो इसने एग्जेक का यूज किया और उसको अपने आप को ओवरराइट कर लिया विद द कोड ऑफ कमांड। ठीक है, और उसके बाद रन हो गया। बट इन द मेन टाइम व्हाट सेकंड सिस्टम कॉल इज बीइंग यूज्ड बाय शेल इज वेट। ठीक है, ये शेल ने वेट को यूज किया और इसने अपने लिए वेट असर्ट कर लिया। और ये किसके लिए वेट करेगा, इट विल वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस चाइल्ड। तो जब चाइल्ड का कंप्लीशन हो गया तो उसके बाद कंट्रोल वापस शेल के पास आ गई और शेल ने अपना नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम कर लिया। दैट मीन्स द डिस्प्ले ऑफ प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन। तो ये आप यहाँ पे अब आप सेकंड कमांड दे सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग टिल नाउ। हमें ये नहीं मालूम होता, हमें तो ये सिर्फ यही मालूम होता कि कोई भी कमांड, जैसे अगर हमें कोई कमांड SCP है, MV है, उसको हम सिर्फ चलाते हैं, रिजल्ट आता है और डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाता है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में ये सिस्टम कॉल्स चल रही होते हैं। इन्हीं का यूज करके शेल जो है वो पहले एक अपना, क्योंकि प्रोसेस ही यही है कि शेल जो है अगर किसी कमांड को रन करना चाहता तो शेल हैज टू फर्स्ट क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, एंड इट शुड क्रिएट दैट चाइल्ड प्रोसेस फॉर दैट कमांड सो दैट कमांड कैन एग्जीक्यूट। बट यू नो दैट कि व्हेन इट इज फोर्किंग अ चाइल्ड प्रोसेस द चाइल्ड इज मिरर रेप्लिका ऑफ पेरेंट इटसेल्फ। दैट मीन्स वो भी शेल का ही एक क्लोन है। बट द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू क्रिएट अ शेल एज ए क्लोन, एज ए चाइल्ड प्रोसेस। रादर ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइल्ड को इस कमांड के कोड को जो है एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या करेगा, फिर चाइल्ड जो है वो एग्जेक का यूज करेगा, अपने आप को ओवरराइट कर लेगा विद दिस कमांड। और उसके बाद अब ये कोड इसका इंडिपेंडेंट हो गया शेल से। उसके बाद ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट होगी इसका सिग्नल जो है वेट के थ्रू ट्रिगर होके बैक पेरेंट के पास चला जाएगा। पेरेंट जो है फिर से ये जान जाएगा कि चाइल्ड हैज डेड नाउ इट हैज टर्मिनेटेड। तो उसके बाद पेरेंट अपना नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम करेगा और इसके में पेरेंट क्या है, शेल है। तो इसलिए शेल का नॉर्मल ऑपरेशन क्या है, डिस्प्ले ऑफ डॉलर प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन टू एक्सेप्ट अ न्यू कमांड फ्रॉम योर साइड। तो इसका मतलब है कि ये एक परोक्ष यूज है 3 सिस्टम कॉल्स का, फोर्क का, एग्जेक का और वेट का। लेकिन हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि डॉलर प्रॉम्प्ट पे हमें एक कमांड देनी है और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर आएगा और उसके बाद फिर से डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है कि इस कमांड को रन करने के लिए सिस्टम कॉल्स अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और ये सिस्टम कॉल्स हैं क्या, बेसिकली दे आर द कॉल ऑफ दोज रूटीन्स विच आर द पार्ट ऑफ कर्नल। तो ये मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कमांड कर्नल के रूटीन से ही जो है एग्जीक्यूट होती है। शेल का केवल इतना काम होता है कि शेल उसमें एक इनडायरेक्ट रोल अपना प्ले करता है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट किसके थ्रू होती है, उन मशीन लैंग्वेज रूटीन्स के थ्रू जो कर्नल का पार्ट है।
क्योंकि अगर हम यहाँ फोर्क यूज कर रहे हैं, एग्जैक यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, दे आर द कॉल ऑफ स्पेशल फंक्शंस। और उन फंक्शंस का कोड कहाँ पे है, इज द पार्ट ऑफ कर्नल, वो कर्नल का पार्ट है, तो वो रन होगा और आपकी कमांड जो है वो हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसीलिए डायग्रामेटिकली जब हम शो करते हैं और हम एनसर्कलिंग करते हैं, तो इनर मोस्ट सर्कल में हम शो करते हैं कि वो हार्डवेयर है। नेक्स्ट जो उसके आउटर सर्कल होता है उसमें हम कर्नल को शो करते हैं, क्योंकि कर्नल के रूटीन्स ही हार्डवेयर को सीधे एक्सेस करते हैं। और उसके बाद जो हम स्मॉल स्मॉल सर्कल्स जो माउंट करते हैं कर्नल के ऊपर, वो क्या होते हैं, वो शेल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है, इसलिए अगर ये कर्नल है तो इसमें मल्टीपल शेल्स इस तरीके से चल रहे होते हैं। यही अगर डॉस होता तो उसमें कर्नल के ऊपर जो है एक सिंगल शेल होता, क्योंकि वहां तो सिंगल यूजर ही अलाउड है काम करने के लिए। तो वहां एक ही शेल जो है वो एक यूजर को कनेक्ट कर पाता है कर्नल से, इसीलिए वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्लियर है आपको कि जिसमें कैसे जो है इनडायरेक्टली ये सिस्टम कॉल्स जो है अपना रोल प्ले करती हैं बैकग्राउंड में। आप अपना फीडबैक जो है either negative or positive you must give, because I am simply teaching in vacuum. I mean, I am not watching your faces, so I am unable to understand whether you are getting it or not. The only way to get the feedback is the asking of this question ki whether you are understanding it or not. So either you say yes or you say no. Yes, sir. इसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्टनेस आप दिखाएं। मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो, या अगर मैं ये कहता हूं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, तो आई मीन इमीडिएटली इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग यू शुड रिस्पॉन्ड कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई मीन व्हाई यू आर वेटिंग फॉर अदर्स टू स्पीक। आप में से जो भी उसको लीड करता है या समझता है कि समझ में आ रहा है वो बोले, और उसको अगर किसी को लगता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो ही मस्ट गिव दिस फीडबैक टू मी सो दैट आई कैन री एक्सप्लेन द सेम कंसेप्ट। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली वी कैन सी। अभी हमें प्रैक्टिकली हम लोग एक सी का प्रोग्राम देखेंगे, उसमें वी कैन सी कि हाउ दिस इज हैपनिंग। अब इसमें आई हैव रिटन टू प्रोग्राम्स। वन प्रोग्राम, लेट मी give you the display of that program, execp.c। ये एक पेरेंट प्रोसेस है जो मैंने क्रिएट किया। अभी तक क्या था, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया उसमें शेल एक पेरेंट था, और वो क्या कर रहा था, कमांड जो cmd थी, जो मैंने एग्जाम्पलरी कमांड एक आपको प्रिज्यूम करके बताया था कि हम कमांड लाइन पे एंटर कर रहे हैं, वो एक चाइल्ड प्रोसेस था। ठीक है, और क्योंकि इससे पहले हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि जब भी पेरेंट जो है किसी चाइल्ड को क्रिएट करता है तो पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं कोड वाइज। ठीक है, सेम था। और आपने देखा उसमें कि केवल एक कंडीशन का डिफरेंस रहता है कि जो p इज इक्वल टू 4 हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद ही चाइल्ड क्रिएट होता है। तो जो वेरिएबल p है वो चाइल्ड वाले कोड के केस में 0 रहता है। ठीक है, लेकिन पेरेंट के केस में वो जो p वेरिएबल होता है, जो p इज इक्वल टू आप 4 लिखते हैं, उसमें उस न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड की PID आ जाती है। और इट सीम्स लॉजिकल, क्योंकि पेरेंट को उसी PID के थ्रू अपने चाइल्ड को ट्रैक करना है कि वो किस स्टेटस पे है। ठीक है, चाइल्ड के पास वो PID जो है p वेरिएबल में स्टोर नहीं रहती, क्योंकि वहां पे p की वैल्यू 0 रहती है। लेकिन चाइल्ड के पास अपनी PID जानने का तो बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि गेट PID करेंगे, चाइल्ड के अंदर अगर डिस्प्ले करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो चाइल्ड की PID डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे केवल यही एक जो डिफरेंस है कि p वेरिएबल जो है दोनों में कॉमन है, पेरेंट में और चाइल्ड में, बट इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग है। पेरेंट में जो है PID है चाइल्ड की, और चाइल्ड में इसी p वेरिएबल की वैल्यू 0 है। ये फैक्ट हम लोग बड़ी हैवली एक्सप्लॉइट करते आए हैं। अगर हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक सेगमेंट जो है कोड का वो पेरेंट के अंदर एग्जीक्यूट हो, पेरेंट का पार्ट बन के एग्जीक्यूट हो, और दूसरा सेगमेंट चाइल्ड का पार्ट बन के एग्जीक्यूट हो, तो ये p वेरिएबल जो है इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दैट, because we are putting the condition if p is greater than 0, so that condition is true only in case of parent. So far what we are doing, we are watching that both the parent and child processes, they are having the common code, but we are having the conditional execution in both the codes by just making use of p variable. So p greater than 0 is true only in case of parent. So anything which we wish to execute as part of parent, we can put in that if statement.
और else part में anything which you wish to execute as part of child, that you can put in else part, because you know that p greater than 0 will be false in case of child process. So obviously only else part will be executed as part of child. So far we have been doing it. मैंने इसमें कभी ये नहीं करा अभी तक का कि चाइल्ड का कोड ही मैं पेरेंट से फर्क कर दूं. अभी तक तो हम लोग यही देख रहे हैं कि दोनों में कोड कॉमन है. एक कंडीशन की वजह से कुछ पार्ट जो है पेरेंट में एग्जीक्यूट होता है और कुछ पार्ट चाइल्ड में एग्जीक्यूट होता है. अभी हम ये देखना चाहते हैं कि नहीं, चाइल्ड ही अपने आप को ओवरराइट कर ले विद अ न्यू कोड एंड इट शुड बिकम टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट एंड देन बोथ शुड एग्जीक्यूट. ठीक है, दोनों को एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हम दोनों को ऐसे ही रैंडमली एग्जीक्यूट होने दें तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि या तो पेरेंट पहले कंप्लीट हो जाए. अगर पेरेंट पहले कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब जो चाइल्ड जो है वो ऑर्फन बन जाएगा, जो कि अनवांटेड सिचुएशन है. दूसरा, अगर चाइल्ड आइसोलेशन में रहे और पेरेंट को कोई फीडबैक ही ना दे तो जैसे वो टर्मिनेट होगा उसके बाद जब पेरेंट, मान लीजिए उसके आधे घंटे तक पेरेंट चलता रहे, तो उस आधे घंटे तक चाइल्ड की एंट्री सारी जो है प्रोसेस टेबल को ऑक्युपाई करे रहेंगी. तो अननेसेसरी वहां पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है और चाइल्ड उस आधे घंटे तक ज़ुम्बी बना रहेगा. तो इसलिए ये जरूरी है कि चाइल्ड का टर्मिनेशन जो है वो प्रॉपरली इन्फॉर्म हो पेरेंट को, एंड दैट वी नो कि इट इज हैपनिंग ओनली थ्रू वेट सिस्टम कॉल. तो ये तीन सिस्टम कॉल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज फोर्क टू क्रिएट अ चाइल्ड, सेकेंड इज एग्जेक. विद द यूज ऑफ दैट, जिस भी कोड के अंदर एग्जेक का एग्जीक्यूशन होता है उस एग्जेक से वो जो प्रोग्राम है अपने आप को ओवरराइट कर लेता है. और तीसरा जो वेट है, वेट के थ्रू कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर वेट एग्जीक्यूट होता है वो वेट को एग्जीक्यूशन के साथ ही वो जो है लूप में चला जाता है और तब तक वो लूप में रहता है जब तक कि वेट से एक सिग्नल ट्रिगर ना हो जाए. और वो ट्रिगरिंग क्या होती है कि जो क्रिएटेड चाइल्ड है वो जब कंप्लीट होगा तो ये वेट जो है इस करंट प्रोसेस को लूप से बाहर ले आएगा और साथ में इन्फॉर्म भी कर देगा कि जो चाइल्ड टर्मिनेट हुआ है वो नॉर्मल टर्मिनेशन था उसका या एबनॉर्मल टर्मिनेशन था. ठीक है, तो अभी यहाँ पे यू जस्ट सी अ प्रोग्राम. ये प्रोग्राम जो है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है. इसमें मैंने एक types.h फाइल जो हेडर फाइल है और weight.h ये दोनों ऐड की हैं. दो वेट जो है इसमें वेट इसमें यहाँ यूज़ किया है मैंने, वेट 0. ठीक है, तो अब यू कम टू दिस कि यहाँ हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं. मतलब इस प्रोग्राम को हम इनपुट कहाँ से देंगे? कमांड लाइन से. और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर हम कमांड लाइन पे 1 2 3, जैसे मान लिया प्रोग्राम का नाम ABC है तो ABC 1 2 3 दिया, तो इसका मतलब मैंने 4 आर्ग्यूमेंट दिए, ABC फिर 1 और फिर 2 और फिर 3. तो वो ARGC की वैल्यू को क्या सेट कर देता है? 4. और ARGB में क्या स्टोर हो जाता है? ARGB 0 विल बी ABC, ARGB 1 विल बी 1. ठीक है, ARGB 2 विल बी 2 और ARGB 3 विल बी 3. जो 3 आपने 4 वैल्यूज आपने कमांड लाइन पे दी हैं. तो ये जस्ट एक आपको रिमाइंडिंग थी कि हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं. अभी हम ये जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हम ये एक पेरेंट प्रोग्राम है और जब इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि अब पेरेंट एक चाइल्ड क्रिएट करे जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, लेकिन अब उस चाइल्ड प्रोसेस को हम पेरेंट से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं. तो इसका मतलब है कि चाइल्ड के अंदर कहीं ना कहीं एग्जेक का एग्जीक्यूशन होना चाहिए ताकि चाइल्ड अपने आप को ओवरराइट कर ले विद अ न्यू कोड. तो यहाँ पे देखिए हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ऐसा हम पेरेंट से एक ऐसा चाइल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जो चाइल्ड समेशन ऑफ 2 नंबर्स आपको दे, मतलब 2 नंबर का एडिशन करता हो. अब जब ये पेरेंट चाइल्ड को क्रिएट करेगा तो चाइल्ड क्रिएट होने के बाद जो है 2 नंबर को ऐड करेगा, तो ये 2 नंबर कौन देगा? पेरेंट देगा, क्योंकि ये हम चाइल्ड को तो सीधे वैल्यूज नहीं देंगे. हम चाहते हैं कि हमने पेरेंट को जब रन करें तो उसी को बता दें कि उसे जो है एक चाइल्ड क्रिएट करना है और उस चाइल्ड को ये 2 नंबर देने हैं ताकि उसका एडिशन हो जाए. ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हमें इसमें कमांड्स को देखना पड़ेगा कि एग्जेक का और फोर्क का. तो फोर्क तो हम लोग आपको पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि यहाँ पे व्हेन PID इज इक्वल टू फोर्क से जब ये कमांड एनकाउंटर होगी, ये सिस्टम कॉल, तो क्या होगा? आपका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा इससे PID इज इक्वल टू फोर्क से. और उसके बाद जब ये जो कंडीशन है अगली वाली PID इज ग्रेटर देन 0, ये केवल पेरेंट में ट्रू होगी. तो पेरेंट में ट्रू होगी तो पेरेंट ने डिस्प्ले क्या किया? उसने वो आर्ग्यूमेंट्स आपको सारे डिस्प्ले कर दिए.
ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले कर दिए। तो इसको एक बार मैं फिर से वही व्हाइट बोर्ड पे चल के एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली इसमें हमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट प्रोसेस है जिसको हमने नाम दिया p.c और एक चाइल्ड प्रोसेस है जिसको नाम दिया c.c। और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो हम चाहते हैं कि एडिशन करे दो नंबर्स का, ठीक है, या कुछ भी करे, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का हो सकता है, पैलिंड्रोम का हो सकता है, वो आप एक कोड लिखना चाहते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जब पेरेंट जो है एग्जीक्यूट होता है तो कहीं जब ये 4 को एग्जीक्यूट करेगा तो उससे क्या होगा, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। लेकिन वो चाइल्ड प्रोसेस का कोड जो है पेरेंट के सिमिलर होगा, तो हम चाइल्ड में क्या करेंगे, एग्जैक्ट को यूज करेंगे और चाइल्ड अपने आप को ओवरराइट कर लेगा विद द कोड ऑफ दिस सी प्रोग्राम। एंड दिस सी प्रोग्राम यू हैव रिटन विद द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करने का आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो अब जब इस पेरेंट को हम मान लीजिए रन करेंगे, तो हम इसको रन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो पेरेंट का नाम देंगे, क्योंकि हमने इसकी ऑब्जेक्ट फाइल मान लीजिए p नाम से बनाई, तो उसको p नाम देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक पाथ देते हैं। पाथ किसका देते हैं, चाइल्ड का, कि चाइल्ड जो हमने जिस चाइल्ड से हम इस चाइल्ड प्रोसेस, जिस सी प्रोग्राम से इस चाइल्ड प्रोसेस को हम ओवरराइट करना चाहते हैं, वो कोड का पाथ कहाँ का पाथ क्या है वो हमें देना पड़ेगा, कि वो किस डायरेक्टरी में वो प्रोग्राम है। उसके बाद उस प्रोग्राम का नाम क्या है, मतलब ये जो c.c जो है, अगर ये मान लीजिए आपका प्रोग्राम abc सब डायरेक्टरी में है, तो आप यहाँ पे पाथ में क्या लिखेंगे, /abc/c.c, ये तो पाथ हो गया। उसके बाद प्रोग्राम का नाम क्या है, c.c, ये प्रोग्राम का नाम हो गया। उसके बाद इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो इनपुट चाहिए वो आप इनपुट देंगे, जैसे मैंने दिया 12 और 13, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि c.c जो है शुड परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स 12 एंड 13। तो अब आप देखिए कि मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम को रन करना, किसके थ्रू, पेरेंट के थ्रू। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट एक चाइल्ड क्रिएट करे और चाइल्ड क्रिएट होने के बाद चाइल्ड अपने आप को ओवरराइट कर ले विद दिस कोड, इस कोड से अपने आप को ओवरराइट कर ले। अब कोड से जैसे अपने आप को ओवरराइट करेगा तो वो पेरेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट का कोड और चाइल्ड के कोड में कोई सिमिलरिटी नहीं है। और उसके बाद ये जो चाइल्ड प्रोसेस है ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। इसको एग्जीक्यूट क्या करना है, इस कोड का इनपुट था कि इसमें दो नंबर चाहिए थे सो दैट इट कैन परफॉर्म द समेशन ऑफ टू नंबर्स। तो वो दो नंबर कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली दे विल बी कमिंग फ्रॉम पेरेंट। तो हम पेरेंट को ही वो वैल्यूज दे दें। कैसे वैल्यूज देते हैं कमांड लाइन पे, पेरेंट का नाम और पेरेंट के बाद उस चाइल्ड की जो चाइल्ड प्रोसेस को जिस प्रोग्राम के से ओवरराइट होना है उस प्रोग्राम का पाथ दे देते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम दे देते हैं जो चाइल्ड को ओवरराइट करेगा अपने कोड से, और उसके बाद वो दो इनपुट देते हैं जो इस प्रोग्राम को चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज वी हैव एंटर्ड ऑन कमांड लाइन, जिसमें से पहली वैल्यू जो है ये तो पेरेंट का नाम ही है, वो प्रोसेस जो एक्चुअली चाइल्ड को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पेरेंट ने चाइल्ड क्रिएट किया होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं कि ये वाला जो चाइल्ड है ये क्रिएट हुआ। उस चाइल्ड को किस प्रोग्राम के से ओवरराइट होना है उस प्रोग्राम का पाथ यहाँ पे दिया, तो वो प्रोग्राम कौन सा है ये, और पाथ हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, /abc/c.c, तो वो पाथ यहाँ पे दे दिया। उसके बाद उस प्रोग्राम का नाम दिया, जो उस पाथ में जो प्रोग्राम है उसका नाम दिया, तो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नाम होता है तो वो दे दिया। उसके बाद अब ये ओवरराइट हो गया जब इससे, तो इसको रन होने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, और वो वैल्यूज कौन सी हैं, वो भी हमने पेरेंट को पास कर रखी हैं 12 एंड 13। तो एज ए यूजर हमने पेरेंट को पास की, पेरेंट ने आगे वो किसको पास कर दी, इस चाइल्ड को पास कर दी, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूशन में हम देखते हैं कैसे होगा। तो वंस अगेन वी आर मूविंग बैक टू दैट एग्जीक्यूशन स्क्रीन कि हम यहाँ पे, तो पहले मैं आपको चाइल्ड फिर से एक बार चाइल्ड दिखाता हूँ कि चाइल्ड प्रोसेस कोड हमने क्या लिखा है। ये चाइल्ड प्रोसेस है, अगेन इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कंसेप्ट के साथ लिखा है। तो argc argv यूज किया है, क्यों लिया है, क्योंकि चाइल्ड जब रन होगा तो चाइल्ड को हम चाहते हैं कि डाटा कहाँ से मिले, पेरेंट से मिले। कमांड लाइन से तो पेरेंट से डाटा पाने के लिए इसे जो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो चाइल्ड फिर डिस्प्ले क्या कर रहा है कि आई एम चाइल्ड विद PID दिस, चाइल्ड ने पहले तो अपनी PID डिस्प्ले कर दी और उसके बाद उसने अपना ये प्रिंट एफ करके दो नंबर जो उसको हमने पास किए हैं, क्योंकि ये नंबर स्ट्रिंग में होते हैं
जब इसको आप इस प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को जब नंबर हम पास करते हैं तो प्रोग्राम रन कैसे होगा, हम इसमें लिखेंगे एग्जैक सी और उसके बाद 12 और 13। जैसे इसको मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ, इसको इंडिपेंडेंटली भी हम चला सकते हैं। अब इसको रन करते हैं तो एग्जैक सी एंड 12 13, तो उसने लिखा आई एम चाइल्ड विद PID दिस एंड द सम इज 25। ठीक है, तो क्योंकि ये नंबर जो है जो 12 और 13 और ये एग्जैक्ट के अंदर स्टोर कैसे हुए थे, ARGB में स्टोर हुआ था। ARGB 0 क्या था, ये था एग्जैक्ट सी, और ARGB 1 क्या था, इट वाज 12 और ARGB 2 क्या था, इट वाज 13, तो ये 13 था। तो इसके अंदर जब ये हमने यहाँ पे परफॉर्म किया तो वी हैव यूज्ड ASCII टू इंटीजर फंक्शन। इट इज मैंडेटरी टू यूज बाय, बिकॉज इसको आप न्यूमरस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, 12 विद इन इनवर्टेड कॉमा इज स्ट्रिंग, तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट 12 टू न्यूमेरिक 12 एंड दैट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ A2I ASCII टू इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एंड क्योंकि ये फंक्शन का हेडर जो है वो stdlib में जो है डिक्लेयर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे A2I के लिए हमने यहाँ पे stdlib.h इंक्लूड कर रखी है। तो यहाँ पे ARGB 1 जो 12 है उसको कन्वर्ट कर लिया, और आगे जो है ARGB 2 जो 13 है उसको कन्वर्ट कर लिया। फिर ये दोनों नंबर्स जो है ऐड हुए और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 25 सब्स्टिट्यूट हो गई, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस आउटकम ऑन द स्क्रीन कि द सम इज 25। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये चाइल्ड जो है इसने अपनी PID भी पहले प्रिंट कर रखी है। तो आप ये समझे कि ये तो वो सी का प्रोग्राम है जो हमने इंडिपेंडेंटली लिखा। हम ये चाहते हैं कि अब पेरेंट जो है चाइल्ड को क्रिएट करे, और वो जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट का रिप्लिका होगा, लेकिन उसके बाद चाइल्ड को अपने आप को ओवरराइट करना है इस वाले प्रोग्राम के कोड से। ये वाला प्रोग्राम कौन सा है, एग्जैक्ट सी, इस कोड से इसको अपने आप को ओवरराइट करना है। तो देखिए जिससे वो ओवरराइट करेगा वो एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। डोंट गेट कंफ्यूज कि वो अपने आप को सी कोड से ओवरराइट कर लेगा। सी कोड से अगर ओवरराइट करेगा तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो एग्जीक्यूट होना है ना, तो एग्जीक्यूटेबल वर्जन से अपने आप को ओवरराइट करना है। तो ये इतना तो क्लियर है कि दिस इज द प्रोग्राम विच वी विश कि इसका कोड जो है वो चाइल्ड के अंदर चला जाए। अब हम पहले प्रोग्राम पे आते हैं कि हाउ वी हैव क्रिएटेड दैट पेरेंट विच इज क्रिएटिंग दिस चाइल्ड। अभी आप देखें इस प्रोग्राम में तो हमने PID इज इक्वल टू 4 से इस पेरेंट प्रोसेस से एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया। ये वाला जो कोड है ये केवल पेरेंट में एग्जीक्यूट होगा। तो पेरेंट ने क्या किया, पहले तो सारे आर्गुमेंट्स आपको बता दिए जो आपने इस पेरेंट को रन करने के समय जो दिए थे कमांड लाइन पे, वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ये आर्गुमेंट क्या क्या है, पहला ARGB 0 तो पेरेंट का नाम है, दूसरा ARGB 1 उस कोड का पाथ है जिसको हम चाहते हैं कि चाइल्ड को ओवरराइट कर दे। फिर उसके बाद उस कोड का ये नाम है, ये तो पाथ है पहला वाला, और दूसरा वाला नाम है उस कोड का जिसे चाइल्ड को ओवरराइट करना है। फिर ये वो वैल्यूज हैं जो हम उस कोड को या उस चाइल्ड को देना चाहते हैं फॉर इनपुट। ठीक है, तो 4 वैल्यूज हैं यहाँ पे, 1 2 3 सॉरी 5 वैल्यूज। पहला तो पेरेंट का नाम, दूसरा जिस कोड से हम चाइल्ड को ओवरराइट करना चाहते हैं उस पाथ का नाम, तीसरा उस कोड का नाम जो चाइल्ड को ओवरराइट करेगा, फिर वो वैल्यूज जो हम चाइल्ड को देना चाहते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, जो उसको इनपुट चाहिए रन होने के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पे चाहते क्या है कि जो अभी हमने प्रोग्राम आपको दिखाया वो प्रोग्राम जो है चाइल्ड को ओवरराइट कर ले, तो उस प्रोग्राम को चलने के लिए 2 वैल्यूज चाहिए ना। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि 12 13 मैंने दिया था, अभी ये 12 13 कहाँ से आना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम पेरेंट। तो इसलिए हमें वो पेरेंट को देना पड़ेगा रन करने के समय। चलाएंगे किसको, हम पेरेंट को चलाएंगे, हम चाइल्ड को नहीं चलाएंगे। हम पेरेंट को चलाएंगे, पेरेंट अपने आप ही ये करेगा कि चाइल्ड क्रिएट करेगा, फिर इट विल लेट दैट चाइल्ड टू ओवरराइट इटसेल्फ विद द कोड ऑफ दैट समेशन ऑफ 2 नंबर्स। वो चाइल्ड अपने आप को उस कोड से ओवरराइट कर लेगा, उसके बाद फिर चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा और दोनों नंबर का सम करके रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अभी आप देखें कि ये केवल एक डिस्प्ले मैसेज है जिसमें हम आपको चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि हमने क्या क्या दिया था पेरेंट को। उसके बाद वेट 0 की वजह से क्या होगा, पेरेंट विल पुट इनटू वेट स्टेट। नाउ इट हैज टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ चाइल्ड। तो इवेंचुअली चाइल्ड के पास कंट्रोल चली जाएगी। अब चाइल्ड जो क्रिएट हुआ उसके पास पूरा का पूरा यही कोड है जो पेरेंट के पास है, लेकिन चाइल्ड में चलेगा क्या, एल्स पार्ट चलेगा।
एल्स पर चलेगा तो चाइल्ड तो पहले तो स्लीप 5 से 5 सेकंड के लिए वो स्लीप है, उसके बाद चाइल्ड ने अपनी पीआईडी दी, अपने पेरेंट की पीआईडी दी, और उसके बाद नेक्स्ट इट इज मेकिंग यूज ऑफ एग्जेक। ये एग्जेक एल जो है ये एक वेरिएंट है एग्जेक का। एग्जेक जो सिस्टम कॉल है, इसके कई वेरिएंट हैं, जैसे एग्जेक एल है, ठीक है, एग्जेक पी है, एग्जेक वी है, तो बहुत सारे हैं। वन ऑफ देम विच आई एम यूजिंग ओवर हियर इज एग्जेक एल। एल स्टैंड्स फॉर लिस्ट। तो यहाँ पे आप जितने भी आर्ग्यूमेंट एग्जेक एल को देना चाहते हैं, आप कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। शर्त ये है कि हम कैसे बताएंगे इस फंक्शन को कि यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड हो रहे हैं, तो उसके लिए लास्ट में यहाँ पे आपको नल टर्मिनेटर देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने नल टर्मिनेटर दिया, और वो क्या लिखा, कैरेक्टर स्टार 0, ठीक है। इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, और ये एक जो है नल टर्मिनेटर हो गया। अभी इसमें ARGB1 क्या बनेगा, क्योंकि ये जो है ये जब कोड जब रन होगा, हाँ ये पाथ होगा, और दूसरा ये वाला जो है उस प्रोग्राम का नाम होगा, हाँ, जिसको चाइल्ड जो चाइल्ड को ओवरराइट करेगा। ये वैल्यू होगी पहली वाली जो चाइल्ड को चाहिए, और ये दूसरी वैल्यू होगी जो चाइल्ड को चाहिए। और ये अंतिम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि हमारा प्रोग्राम जो चाइल्ड वाला हो वो 2 ही इनपुट चाहता हो सकता है उसमें 3 इनपुट चाहिए, 4 इनपुट चाहिए। तो एनी नंबर ऑफ इनपुट्स यू कैन स्पेसिफाई। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज कि द एंड शुड बी मार्क्ड विथ कैरेक्टर स्टार 0, मतलब नल टर्मिनेटर उसमें लगा होना चाहिए, ठीक है। तो अब इट इज क्लियर कि ये जो कोड है ये पेरेंट का कोड है, लेकिन अप टू एग्जेक एल यही चाइल्ड के अंदर भी कॉमन रहेगा यहां तक। लेकिन जैसे ही एग्जेक एल जो है कोड तो कॉमन होगा, लेकिन जब ये रन होगा, जैसे एग्जेक एल एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड कोड जो है वो अपने आप को ओवरराइट कर लेगा विद द कोड दैट whose path you have given over here and whose name you have given over here. And what is that code? It was ARGC, exec c जो मैंने आपको चाइल्ड प्रोसेस दिखाया था, वो कोड यहाँ पे चाहते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस को ओवरराइट कर ले। अब इसको कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को, execp.c then -o execp। Now we are running this program, तो we are giving execp which is the name of parent। दूसरा हमें पाथ देना है, तो पाथ में आप यही दे दीजिए, क्योंकि हमारा करंट डायरेक्टरी के अंदर ही जो है ये सी का प्रोग्राम है, ठीक है, जो चाइल्ड प्रोसेस जिसको हम रन कराना चाहते हैं। दोबारा से भी आपको यही देना पड़ेगा क्योंकि यही नाम है उसका प्रोग्राम का, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं, मान लीजिए मैंने दिया 44 और दूसरा दिया 55। तो अभी आप देखें कितनी वैल्यू दी, ये है ARGB 0, ये है ARGB 1, ये है ARGB 2, ये है ARGB 3 और 55 है ARGB 4। और ये सारी की सारी वैल्यूज पेरेंट अपने इस स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वेट 0 से वो अपने आप को वेट में डाल लेगा। और स्लीप 5 हमने डेलिबरेटली इसलिए दिया है चाइल्ड के अंदर कि चाइल्ड को अगर पहले भी टर्न मिल जाए तो भी स्लीप 5 ये श्योर करेगा कि पेरेंट का टर्न पहले आ जाए, ठीक है। तो पेरेंट का टर्न आ गया, पेरेंट ने सारे आर्गुमेंट ऑन स्क्रीन आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया। उसके बाद वेट 0 से इट हैज स्टार्टेड वेटिंग फॉर द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो इवेंचुअली द कंट्रोल विल कम टू द चाइल्ड, और चाइल्ड क्या फिर एग्जीक्यूट करेगा, यही वाला हिस्सा एग्जीक्यूट करेगा। तो चाइल्ड भी अपना पहले तो पीआईडी दे देगा, अपने पेरेंट की पीआईडी बता देगा, फिर उसके बाद अपने आप को ओवरराइट कर लेगा। ओवरराइट किससे कर लेगा, ये वाले प्रोग्राम से जो आपने यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, इससे अपने आप को ओवरराइट कर लेगा। और इस प्रोग्राम को चलने के लिए दो इनपुट चाहिए, वो भी इस चाइल्ड को पास ऑन हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि एक्सेकल के अंदर हमने दिया क्या क्या है, पाथ दिया है, कोड का नाम दिया है, पहला इनपुट दिया है, दूसरा इनपुट दिया है, सब दे दिया। तो इसी के साथ चाइल्ड जो ओवरराइट हो गया विद द न्यू कोड, और उसके साथ ही ये दोनों वैल्यूज जो 3 और 4 हैं ये उसको पास हो गई चाइल्ड प्रोसेस को, ठीक है। Yes, तो sir. अब वी आर एग्जीक्यूटिंग इट। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट आप जो आउटपुट पा रहे हैं, दैट यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की वजह से आपको ये स्टेटमेंट मिला यहाँ पे। उसके बाद आई एम चाइल्ड विद पीआईडी, तो ये किसने डिस्प्ले किया, ये यहाँ पे चाइल्ड ने डिस्प्ले किया, आई एम चाइल्ड विद पीआईडी दिस वन। उसके बाद चाइल्ड ने क्या किया, अपने आप को ओवरराइट कर लिया कोड से, और वो कौन सा कोड है, एग्जैक्ट सी, उससे अपने आप को ओवरराइट किया। और उसको वैल्यूज 44 और 55 भी मिली यहाँ पे, वो 44 और 55 दोनों मिला के उसने प्रिंट कर दिया द सम इज
99। ठीक, और उसके बाद कंट्रोल वापस फिर से कहाँ आई, पेरेंट के पास, क्योंकि वेट जीरो की वजह से पेरेंट यहीं पे रुक गया था इस स्टेटमेंट पे ही। तो जब कंट्रोल वापस पेरेंट के पास आई तो पेरेंट ने प्रिंट किया आई एम पेरेंट विद पीआईडी। तो आई एम पेरेंट विद पीआईडी 3419 एंड चाइल्ड पीआईडी इज 3420। इस पूरे एग्जीक्यूशन में जो एक चीज नहीं बदलती वो ये है कि पेरेंट ने अगर चाइल्ड को क्रिएट किया है और क्रिएशन के समय उसकी जो भी पीआईडी बनती है, जो पेरेंट को मालूम चल गई कि 3420 उस चाइल्ड की पीआईडी है, वो पीआईडी सेम रहेगी इवन इफ चाइल्ड जो है अपने आप को ओवरराइट कर ले विद न्यू कोड। कोड से तो ओवरराइट कर लिया अपने आप को, लेकिन उस वो प्रोसेस तो वही था। प्रोसेस तो वो चाइल्ड प्रोसेस ही था जिसने अपने आप को ओवरराइट कर लिया उस नए कोड से। तो इसलिए उसकी जो पीआईडी है वो एज इट इज रहेगी। तो जो 3420 उसकी पीआईडी थी वो उसकी पीआईडी रही। ठीक है, अब इसमें जो सर ध्यान मेरा देने, एक कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। सर जब चाइल्ड एग्जीक्यूट हुआ तो इस पार्ट में आया वो 5 सेकंड के लिए स्लिप हुआ। हाँ, और सर इसमें जो लिखा है printf आई एम ए चाइल्ड विद पीआईडी %d एंड पेरेंट आईडी, सर हाँ, ये हाँ, तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये एग्जीक्यूट लेकिन अभी नहीं हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। स्लीप 5 तो हमने इसलिए डाला था कि वो हम्म। स्लीप में चला गया, और उसके बाद वो इतना, क्योंकि 5 सेकंड का टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा है, तो ये इसलिए यस श्योर सर। किया था कि मान लीजिए चाइल्ड को टर्न पहले मिले तो भी चाइल्ड से टर्न जो है वापस पेरेंट को आ जाए। तो पहला जो स्लीप 5 स्टेटमेंट है वो चाइल्ड को डिले कर देगा। यस तो सर। पेरेंट को जो है स्लॉट जरूर मिलेंगी, पेरेंट के पास जो है कंट्रोल आएगी, तो पेरेंट जो है फिर पहला वाला जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये वाला वेट के पहले वाला उसको यस डिस्प्ले सर। कर देगा। इस वजह से हमें ये जो मैसेज है द आर्ग्यूमेंट्स आर ये मिल गया। उसके बाद हाँ। वेट जीरो आके पेरेंट को फिर से रोक देगा यहाँ पे। अब यस पेरेंट सर। को रोक देगा तो कंट्रोल वापस चाइल्ड के पास। ठीक है, पूरा मैसेज प्रिंट करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हो रही है है क्या चीज। सर, ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है ना। मैं देख रहा हूँ उसी को। हाँ, इसको मैं चेक करता हूँ कि वाई इट इज नॉट गेटिंग प्रिंटेड। स्लीप 5 पे जाके और सर जब हमको फाइल नेम देना है उस चाइल्ड प्रोसेस का, तो हाँ, सर हाँ, हम आउटपुट वाली फाइल क्यों सेंड कर रहे हैं इसको डॉट हाँ, स्लैश हाँ, जेड सी। हाँ, हाँ। अच्छा, जो नाम दे रहे हैं उसको। यस सर, ये आउटपुट फाइल क्यों सेंड कर रहे हैं उसको, सर नेम देना चाहिए ना। नहीं, नेम जो है कौन सा आउटपुट हम उसको सबमिट कर रहे हैं। ओके सर।
आउटपुट नहीं सबमिट कर रहे हैं, नाम ही दे रहे हैं, बस ये है कि आप जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है उसमें डॉट स्लैश हटा सकते हैं, यही ना? हाँ हाँ, ये हटा सकते हैं, तीसरे वाले में डॉट स्लैश हटा सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं फिर से देखता हूँ कि वाई इट इज़ नॉट प्रिंटिंग दैट मैसेज, क्योंकि जो लॉजिक है वो तो ये कहता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट एल से पहले तक का जो भी एग्जीक्यूशन है वो तो चाइल्ड को रिज्यूम करना ही करना है, तो चाइल्ड को वो देना चाहिए आउटपुट, और वो दे क्यों मुझे नहीं रहा? मुझे लग रहा है सर इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि वो इल्स पार्ट में आ ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, एल्स पार्ट में आएगा क्यों नहीं? एल्स पार्ट में ही तो मैंने एग्जैक्ट एल को डाला हुआ है, उसको जो डाला है एग्जैक को, एग्जैक एल को एल्स पार्ट में, अगर एल्स पार्ट में एग्जैक एल के कंट्रोल ना आती तो ये जो आपका एडिशन ऑफ टू नंबर्स है ये फिर एग्जीक्यूट ही कैसे होता है ना? वो एग्जीक्यूशन तो तभी हो पा रहा ना जब एग्जैक एल जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि आप इसमें यहाँ पे जो है इसके पहले तक का जो हिस्सा है वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वो इसमें ये चेक करने वाली बात है कि हो सकता है कि जो कीबोर्ड बफर जैसे जब फिल हो जाता है तो कुछ स्टेटमेंट्स स्किप होना शुरू हो जाते हैं। यस तो सर। मैं देखता हूँ कि अगर ऐसा कोई रीज़न है तो फ्लैश आउट करके देख लेंगे उसको डिबगिंग में कि वो उस वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली इसमें जितना कंसेप्ट हम आपको समझाना चाहते थे दैट तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसको हम फिर से एक बार चेक करके और फिर री एक्सप्लेन कर लेंगे कि क्यों इसमें जो है ये सर्टेन स्टेटमेंट्स आर गेटिंग स्किप्ड। ठीक है, सो सर चाइल्ड प्रोसेस वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा है ना सर? कौन सा? सर जो चाइल्ड प्रोसेस है एग्जैक्ट नहीं, सी। चाइल्ड प्रोसेस इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये दो नंबर का एडिशन करता क्यों? हमने तो चलाया किसको था ओरिजिनली? हमने चलाया तो पेरेंट को है ना, तो यस ये जो सर। पहला आर्गुमेंट है ये तो पेरेंट है, हम चला पेरेंट को रहे हैं, बाकी जितनी भी है ये एज ए वैल्यूज हम पास कर रहे हैं पेरेंट को, यहाँ तक का तो सब कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब चाइल्ड के अंदर ये चला तभी ऐसा हुआ कि वो ओवरराइट हुआ और उसने 12 और 13 को ऐड करके यहाँ 25 आंसर दिया, जैसे पिछले वाले में उसने 44 आंसर दिया था सपोज। ठीक है, बट वाई इट इज स्किपिंग दिस स्टेटमेंट दैट इज टू बी सीन, दैट इज टू बी चेक। मैं इसको डिबग करता हूँ, एक्सप्लेनेशन निकालता हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ कि इट इज नॉट डिस्प्लेइंग इट, जबकि इसको मेरे हिसाब से डिस्प्ले करना चाहिए इस मैसेज को। कंसेप्ट यही कहता है कि एग्जैक्ट एल पे आके वो अपने आप को ओवरराइट करता है, उससे पहले तक का जो कुछ भी था वो तो रन होना ही है चाइल्ड से। सर अगर सिर्फ 5 के ऊपर कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दें तो सर इससे पता चल जाएगा कि इल्स पार्ट में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन वो पता है एल्स पार्ट में तो अब उस केस में क्या होगा कि जैसे ही इसको कंट्रोल जो है, देखो मैं यहाँ पे इसको, इस वजह से तो नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने पेरेंट्स को वेट 0 कर दिया है तो वो पेरेंट वाला वेट हो गया है तो फिर यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा वो स्टेटमेंट। नहीं नहीं, ये तो पेरेंट तो वेट करेगा ही, वो तो उसको प्रिंट स्टेटमेंट तो चाइल्ड का है ना, ये पेरेंट का थोड़ी ना, ये तो प्रिंट होना ही चाहिए उसके अंदर इसी प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है। इसके ऊपर इसके ऊपर कर देता हूँ, इसके ऊपर भी कर देता हूँ, और इस हिसाब से ये तो दो बार आना चाहिए। मैंने जब पिछली बार मॉडिफाई किया था चाइल्ड के अंदर तो स्लीप जब दोबारा डाला था तो उसको रिकम्पाइल किया था चाइल्ड को, सॉरी ये, क्योंकि जो रिप्लेस होगा वो कोड होगा, वो सी सोर्स कोड में अगर हमने कोई चेंज किया है। अब इसको फिर से वही चलाते हैं ये, ठीक है। इसने वो वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखे ही नहीं है उसके अंदर, वो मतलब एग्जीक्यूट ही यस नहीं सर, कर, है इल्स ना? पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, एस पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, एग्जैक्ट एल जो है सीधे एग्जीक्यूट होते ही वो, या तो ये इसमें एग्जैक्ट एल का ये थोड़ा हमें इसका लॉजिक देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट एल अगर एग्जीक्यूट ना होता तो इसमें ये दो नंबर ऐड कैसे होते? क्योंकि अगर आप ऐसे इमेजिन करें किसी प्रोग्राम को, अगर हम ये बाकी सारा कुछ जो है एज ए वैल्यूज दे रहे हैं तो ये एग्जीक्यूशन थोड़े ना उसके अंदर हो जाएगा उस प्रोग्राम के अंदर,
अगर हम इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, आपको इसको ऐसे ही पता चल जाएगा कि जस्ट ए मिनट, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट के अंदर ये एग्जीक्यूट हो भी रहा कि नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे हम एग्जैक्ट को जो है एग्जैक्ट को कमेंट कर दें, इसको कमेंट कर देते हैं। यस सर। तो अब देखो इसमें कहाँ पे वो एडिशन हुआ, मुझे लग रहा है ना, 1 मिनट रुको अजी, मैं पहले इसको अनकमेंट करता हूँ। वो पेरेंट और चाइल्ड दोनों को इल्स पार्ट में आया रीकंपाइल है सर, एडिशन नहीं हुआ लेकिन इल्स पार्ट में आया, देखिए प्रिंट हो रहा है। हाँ, आई एम वही मैं एल्स पार्ट गया, उसने एग्जैक्ट हमने कमेंट कर दिया, इसीलिए उसने एडिशन नहीं किया। इसका मतलब एग्जैक्ट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है ना। अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ कि पहले तो थोड़ा मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसमें जो हमने पिछले दोनों प्रोग्राम थे, जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन करें किसी में भी, तो मेक श्योर कि हम दोनों ही प्रोग्राम को रिकम्पाइल जरूर करें। अब हम इसको एक बार रिकम्पाइल कर लेता हूँ। cc execp.c -o execp, दूसरे वाले को भी एक बार प्रिकॉशनरी। अब इसके बाद इसको चलाते हैं। इस बार आया इसमें आई एम चाइल्ड, देखिए वो मैसेज आ गए, आया ना इस बार। ये जो सर, लेकिन सर ये मैसेज उसके ऊपर वाला कमेंट का हो रहा है जो सिर्फ के ऊपर लिखा हुआ है, जो आपने अभी अपडेट किया था। हाँ, वो स्लीप के बाद वाला जो है वो नहीं हुआ, हाँ, जो वो स्लीप के नहीं ऊपर हुआ। वाला चाइल्ड विद पीआईडी दिस। एक्चुअली इसमें मुझे थोड़ा सा यही देखना है कि या तो ऐसा हो रहा है कुछ कि इसका जो आउटपुट आता है, वो जो स्लीप के बाद वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, उसका आउटपुट जो है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने से पहले ही ओवरराइट हो जा रहा है। तो मुझे वही चेक करना है कि उसके आउटपुट को कैसे श्योर करें। तो एनीवेज आई विल चेक इट दिस प्रो कोड एंड आई विल री एक्सप्लेन इट। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन सर करेंगे। स्लीप टाइमिंग की वजह से तो नहीं स्लीप की कि वजह जब से तो ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए। अब सर अगर जो स्लीप 2 लिखे थे, अगर उसको स्लीप 5 लिखे और ऊपर वाले को स्लीप 2 लिखे, उससे कोई अंतर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लॉजिक में कहीं ये चीज़ है ही नहीं कि इसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। इसका तो कुछ और ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि स्किप हो रहा है। अगर इसमें हम केवल, आप कह रहे हो कि काउंट का केवल हम वेरिएशन दे दें कि यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। मैं मान लो यहाँ से स्लीप हटा ही देता हूँ। वो मैसेज नहीं आ रहा यस सर। है ना। तो मैं इसको जो है चेक करता हूँ और इसका जो भी रीज़न होगा आई फाइंड आउट एंड आई लेट यू नो कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें एक्चुअली जो मैसेज दे रहा है, इसमें सर आई एम स्लीप 2 को जो कमेंट किए हैं, पर मैंने ये जो रन किया है, इसमें ये आप देखें तो आई एम चाइल्ड विद पीआईडी दिस जो है, ये मैसेज कैसे आ रहा है? ये मैसेज सर तो उस फाइल से आ रहा है जिस फाइल का आउटपुट दिए हम यहाँ पे .xxc। अच्छा, वहाँ पे भी एक स्टेटमेंट हमने डाल रखा ना कि आई एम यस चाइल्ड विद सर। पीआईडी। हाँ
ओके, चलो ठीक है, इसको मैं फिर से जो है रीलुक करता हूँ, फिर से आपको रीजन बताता हूँ। आपको इन द मेन टाइम क्या करना है कि जो सी के हमारे प्रोग्राम जैसे होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स का, so you have to write a child process for checking of Armstrong number, and then आपको एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट बनाना है जो कि एक चाइल्ड क्रिएट करे और उस चाइल्ड को ओवरराइट कर ले विद द कोड ऑफ, वो चाइल्ड अपने आप को ओवरराइट कर ले विद द कोड ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद इट शुड टेल कि वेदर दैट नंबर विच यू हैव सप्लाइड टू द पेरेंट बेसिकली, so that it can be passed on to child, so that number is Armstrong or not, that can be checked and that can be displayed on the screen। तो सिंपली आपको ये करना कि यहाँ पे जो दो प्रोग्राम्स हमने पेरेंट और चाइल्ड के लिखे हैं, तो चाइल्ड का कोड यहाँ पे समेशन ऑफ 2 नंबर है, बहुत सिंपल सा है। वहाँ पे आपको ये करना है कि वही जो इनपुट आपको एक सिंगल नंबर का इनपुट मिले और प्रोग्राम के अंदर आप उसको चेक कर लीजिए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। आई मीन एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, क्योंकि चाइल्ड को तो हम किसी भी कोड से ओवरराइड कर लेते हैं। तो आपको अगर मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम देना जिसमें आई विश दैट यू शुड जस्ट टू टेस्ट यू वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड एंड कंसेप्ट ऑफ एग्जैक और नॉट, तो केवल हम उसमें यही कहेंगे कि आप एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करें जो एक चाइल्ड को क्रिएट करता हो, फिर वो चाइल्ड अपने आप को ओवरराइट करता हो विद द न्यू कोड, और वो जो नया कोड है वो दैट शुड बी आर्मस्ट्रॉन्ग चेकिंग कोड, ठीक है, एंड दैट शुड चेक वेदर गिवन number is Armstrong or not, and from where that given number is coming, that is coming from parent side, as just now we have passed on 2 values 12 and 13 and we got the answer for 25। तो वैसे ही एक ही नंबर हम सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आर्गुमेंट 4 नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। yes, तो sir. आप ये प्रोग्राम लिखिएगा। इन द मीन टाइम आई सर्च कि इसमें इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इस वाली कमांड का, लेकिन मुझे लगता है उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा मुझे, मैं गूगल करूंगा, आप लोग भी करिएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ये जो है ये एक बेसिक कंसेप्ट है ये समझने के लिए कि जो एक्चुअल हम अपना प्रोग्राम या कमांड को रन करते हैं कमांड लाइन पे, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, दैट नाउ इट इज क्लियर। क्योंकि अभी आप ये समझें कि यहाँ पे पेरेंट जो है एक सी का प्रोग्राम है और जो चाइल्ड जिसको जिस कोड से ओवरराइट करेगा अपने आप को, वो भी एक सी का प्रोग्राम है। लेकिन अब उसी को अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कमांड लाइन पे पेरेंट क्या बन जाता है, शेल बन जाता है, और जो चाइल्ड का कोड है वो क्या बन जाता है, कमांड का कोड, ठीक है। तो वहां पे इम्प्लिसिट यूज है फोर्क का और एग्जैक का और वेट का, यहाँ पे एक्सप्लिसिट यूज है, यहाँ पे अपने कोडिंग के अंदर अलग से साफ साफ डाला है, वहां पे वो इनडायरेक्टली जो है एग्जीक्यूट होता है विच इज नॉट नोन टू यू। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कुछ भी रन करें, चाहे वो जावा का चाहे सी का, अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूट किसके थ्रू होता है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बदलते हैं तो हमारा कंपाइलर भी बदल जाता है। जैसे आपका जो भी जावा का जो कंपाइलर होगा जिसको आप विंडोज़ पे यूज़ करते हैं उसको आप लाइनक्स पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज़ के जो इंटरनल्स हैं उनका यूज़ करके जावा का जो कंपाइलर जो आपका कोड है फाइनली कन्वर्टेड वो वहाँ पे उस पर रन होता है। और यहाँ पे अगर आप लाइनक्स पे उसको यूज़ करते हैं तो लाइनक्स की जो सिस्टम कॉल का सिंटेक्स है वो टोटली डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो कंपाइलर होगा वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ये बेसिकली जो हम समझना चाहते थे वो यही है कि वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम कॉल्स एंड दीज आर द कॉल्स बेसिकली ऑफ कर्नल रूटीन्स। सो एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग दीज कर्नल रूटीन्स ओनली, चाहे वो हम जानते हो चाहे ना जानते हो। सो फॉर वट एवर प्रोग्राम्स वी आर एग्जीक्यूटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम कॉल एटसेट्रा, बट अल्टीमेटली समवेयर दैट प्रोग्राम मस्ट बी मेकिंग यूज ऑफ सिस्टम कॉल्स फॉर इट्स एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑन द हार्डवेयर, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ रियलाइज किया गया था। तो आई होप कि आप ऐसे और प्रोग्राम्स इसमें लिखें ऐसे फर्स्ट फॉर डूइंग दिस प्रैक्टिस, ठीक है। एंड द फर्दर एक्सप्लेनेशन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। सर ये सिर्फ 2 की वजह से हो रहा है, अगर सिर्फ 2 हटा दें तो सर ये एग्जीक्यूट होने लगेगा। हाँ लेकिन उसका भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए कि व्हाई इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्लीप। चलो सर एनीवेज, उसको जैसे एक्सेस सी मिल रहा है सर, उसकी प्रायोरिटी हाई है तो सर उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। मैं इसको जो है फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ execp.c।
वो पहले तो इसलिए ऐसा है कि जैसे स्लीप हमने जो पहले जो प्रिंटअप डाला ना स्लीप के ऊपर वाला, यस वो सर। तो इसलिए भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हो सकता है कि चाइल्ड को ही टर्न पहले मिला हो और चाइल्ड ने ये प्रिंटअप प्रिंट कर दिया हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। चलो एनीवेज, इसको भी हम इसको भी सर स्किप कर, अब तो ये एग्जीक्यूट होगा। हाँ ये तो आ जाएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये बताओ। सर एक्सेल सी की सर प्रायोरिटी अधिक है, क्योंकि सर जब हम चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं तो सर ये प्रोवाइड कर दे रहा है सारी डिटेल्स चाइल्ड को। एग्जैक्ट एल की एग्जैक्ट एल की प्रायोरिटी कह रहे हो कि अधिक है? यस सर। तो एग्जैक्ट एल की अगर प्रायोरिटी है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो सिक्वेंशियल है, उसमें प्रायोरिटी कहाँ बात आती है? लेकिन सर उसको जब स्लिप 2 मिल जा रहा है तो 2 सेकंड के लिए तो वो स्लिप कर दे रहा है उस ऊपर वाले को, लेकिन एक्सेल एरर को एक साथ रीड कर रहा है, तो इसी वजह से एक्सेल एरर को पहले रन कर दे रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको फिर से देखता हूँ कि अब मैंने रन गलत होगा हो, सर। इसको करना चाहिए था ना, मॉडिफाई तो ये किया है। नहीं अब तो रन होगा ही उसमें क्योंकि स्लीप पड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, लेट अस सी कि ये आता है कि नहीं आता। लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका जो है कुछ नहीं आया। अभी भी नहीं आया सर। नहीं आया तो उसका मतलब है कि उसका, वही मैं बता रहा हूँ ना, देखो प्रायोरिटी तो तब होती अगर हम जैसे आपको कोई असाइनमेंट दे दें और उसके बाद आपको डिसाइड करने का ये मौका दें कि जो दो काम है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले करिए। प्रोग्रामिंग में ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रोग्राम के कोड में तो अगर आपने 5वें नंबर पे कोई स्टेटमेंट लिखा है तो जब वो सिक्वेंशली टॉप डाउन फैशन में एग्जीक्यूट होगा तो होगा तो टॉप से ही ना। तो टॉप डाउन फैशन में एग्जीक्यूट होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो 5वें पे आएगा, है ना। तो यस इसलिए सर। वहां पे ऐसा तो है नहीं कि 5 स्टेटमेंट हैं और हमने जब प्रोग्राम को रन करने के लिए कहा तो उसने पहले 5वें स्टेटमेंट पढ़े, उसके बाद डिसाइड किया इसमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो पहले उसको रन किया। ये तो नहीं होता। प्रोग्राम जो है हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में टॉप डाउन फैशन में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो 1 बाय 1 ही एग्जीक्यूट करेगा। तो लेकिन लेट मी फाइंड आउट द रीजन ऑफ स्किपिंग दीज स्टेटमेंट्स। आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई दूसरा रीजन होगा, आई लेट यू नो। बट इन द मीन टाइम आप ऐसे प्रोग्राम्स लिखिए जैसे कि अब ये चाइल्ड जो जिसने ओवरराइट किया है, दैट चाइल्ड हैज ओवररिटन विद द कोड which was performing only addition of 2 numbers. So similarly you can write the program where the child is overwriting with the code which is checking whether given number is Armstrong or not. Similarly you can also let that child to overwrite itself with the code which is checking whether given word is palindrome or not. ठीक है, तो आई मीन एनी चाइल्ड प्रोग्राम यू कैन राइट जिसको आप चाहते हैं कि वो पेरेंट ने जो चाइल्ड क्रिएट किया उससे वो रिप्लेस हो जाए, तो उसका कोई भी ऐसा प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है, तो सर जी एडिट सर सेव हुआ है? कहाँ पे? हाँ हाँ सेव है, ओके सर। अभी मैं दिखा देता हूँ, देख लिया ना? यस सर। हाँ यस सर। ठीक, तो अभी इसको आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर ओनली, विल डिस्कस द रीजन ऑफ दिस वन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड एज वेल एज पाइप। पाइप भी एक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे ये प्रोग्राम जो हैं वो आपस में एक दूसरे से वैल्यूज को शेयर करते हैं। तो विल सी दैट प्रोग्राम इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, एंड प्लस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम व्हिच वी आर एनकाउंटरिंग ओवर हियर। So thank you very much. I am ending my lecture here only, and थैंक यू सो मच सर। आप इसको एग्जीक्यूट करके जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा एंड आई विल शेयर दैट फाइल आल्सो वेयर आई एम हैविंग ऑल दीज कोड्स। तो मैं उसको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर।